Friends, welcome back to our channel Legal Provisions. I am Aina and we were doing salaries. In the first part, we have done the definition of salary, what salary is under Income Tax Act. Then we have discussed the basis of charge under section 15. Basis of charge specifically says that the salary is charged either on the due basis or on the receipt basis, whichever is earlier. Second, it says that in the case of advance payment, the year in which the previous year in which the employee is getting advance salary, it will be taxable, it will be chargeable to tax in that year only. And then in the third point says about the arrears of salary. That means the salary has become due in the previous year, but the person is actually receiving that salary in the next following year. And if that salary is not being charged in the year in which it is becoming due, then it will be charged to tax in which in the year in which it is being actually received by the employee. These are the main points of the basis of charge. Section 15, that means it says about the chargeable, it is a chargeability section of the heads of salaries. Then we have section 16 under salaries, which says about deductions for reaching the net salaries to be taxed under the head of salaries. We have to deduct the deductions that are given under Income Tax Act, which needed to be deducted from the gross salary. Then under section 17, 3 points are given. Firstly, it defines salary, which I have discussed in the previous video. Then second, section 17 subsection 2 says about the perquisites. It defines the perquisites. Then third, it says about profits in lieu of salary. Now we will talk about firstly about deductions. Then after deductions, we will discuss introductory part of the perquisites and allowance, and in the coming video I'll be discussing with you in detail the perquisites, all the perquisites and all the allowances chargeable to taxes or which are exempted from tax or whatever the case is. Now deductions under salaries. Section 16. The income chargeable under head salaries is computed after making following deductions under section 16. First is standard deduction, then entertainment allowance, then professional tax. These are the main three deductions. That is section 16 clause 1 says about standard deduction, section 16 clause 2 says about entertainment allowance, section 16 clause 3 says about professional tax. Now first about standard deduction under section 16 clause 1. Standard deduction of rupees 50,000 or the amount of salary whichever is lower is provided to the salaried person. That means actual amount of salary or rupees 50,000 whichever is lower. That means under standard deduction provides the maximum limit of rupees 50,000 to be deducted from salaries. That means 50,000 तो हमें deduct करना ही करना है, और ये standard deduction 2018 budget से पहले नहीं था. It has been introduced in the 2018 budget. Then in 2018 the amount was 40,000 and in 2019 budget the amount was increased to 50,000. The Indian Finance Minister, while presenting the Union Budget 2018, announced a standard deduction amounting to rupees 40,000 for salaried employees. The amount has been increased to 50,000 in the Interim Budget 2019. Then entertainment allowance under section 16 clause 2. What is entertainment allowance? होता क्या है ये? Entertainment allowance basically जब employer employee को उसकी जब कोई मीटिंग होती है या पार्टी होती है, जब कंपनी के अंदर ही जब उनकी एम्प्लॉयज़ मीटिंग करते हैं या पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या कंपनी उन्हें विजिट देती है बाहर, उनका होटल स्टे प्रोवाइड करती है, वो सब क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस.
उन्हें मूवी टिकट्स प्रोवाइड करती है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर ये जितना भी खर्चा है अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, it will be said as entertainment allowance. That means cash benefits. We have discussed allowance are cash benefits. ये है कैश बेनिफिट्स, उन्हें ड्रिंक्स, फूड्स, होटल स्टे, मूवी टिकट्स के खर्चा दे रही है, ठीक है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सैलरी। अब प्रोसीजर क्या है, पहले हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं, उसके थ्रू हम उससे डिटरमाइन करेंगे कितना हमें डिडक्ट करना है, वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल नहीं होता, दैट इज टोटली चार्जेबल टू टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़। अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमें 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पहला, स्टैट्यूटरी लिमिट इज 5000। वो इनकम टैक्स कहता है कि मैक्सिमम आप 5000 डिडक्ट कर सकते हो। सेकेंड, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कह रहे हैं, बेसिक पे जितनी हमें मिल रही है उसका 1/5, 20% ऑफ दैट। थर्ड इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड इन द प्रीवियस ईयर। जितना एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है एक्चुअल में, उसने 4000 रुपया खर्चा दिया, यहाँ 4000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो अब तीनों में से जो भी लोअर है, विच एवर इज लोअर, इधर 5000 और 20% of basic salary और actual amount of entertainment allowance granted, तीनों में से whichever is lower that will be deducted, deductible from gross salary to reach net salary. Then for the purpose of salary, it excludes any allowance, benefit or other perquisite. Again the same point, that is for the second point, 20% of basic salary, it means only the basic pay, which excludes any allowance, any benefit, any other perquisite. Means any benefit or any other perquisite. Then amount actually expended toward entertainment out of entertainment allowance received is not taken into consideration. That means एम्प्लॉय ने एक्चुअली कितना खर्चा किया वो हमें कुछ नहीं देखना, that is of no matters. It doesn't matter how much the employee is actually expending on the entertainment. We have to consider actual how much amount is being given by the employer. एम्प्लॉयर ने एक्चुअली कितना दिया है वही कंसीडर करेंगे, एम्प्लॉय ने आगे कितना उसका असल में खर्चा हुआ है वो हमें नहीं देखना। एम्प्लॉयर ने हमें 4000 दिया है, वो हमारा अमाउंट आ जाएगा अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड। अब एम्प्लॉय का कितना खर्चा हुआ है, उसका 500 खर्चा हुआ है उसमें, या 1000 खर्चा हुआ है, 2000 खर्चा हुआ है, दैट वी हैव नॉट टू कंसीडर, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। Then in case of non-governmental employees, including employees of statutory corporation or local authority, entertainment allowance is not deductible and completely chargeable to tax. I have already told that only government employees, but उसमें भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे। अब इसमें क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या लोकल अथॉरिटी के कोई भी, वो भी इंक्लूड होंगे प्राइवेट में, ठीक है। तो ये सब के लिए जो लास्ट पॉइंट है, इस सब के लिए टोटली इट इज चार्जेबल टू टैक्स, नो डिडक्शन इज अलाउड, नो डिडक्शन इज अवेल्ड फॉर द प्राइवेट एम्प्लॉयज अंडर एंटरटेनमेंट अलाउंस। देन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 16 क्लॉज 3। अभी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, अपने बाकी टैक्सेस सुने हैं, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स क्या है। पहले तो ये देखो कि हमें जो अथॉरिटी किसको दी गई है और उन्हें जो गवर्नमेंट हमसे लिवाई कर रही है टैक्सेस, गवर्नमेंट को मेन अथॉरिटी कहाँ से मिलती है टैक्स के लिए, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ये सब इसमें। आर्टिकल
265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो टैक्स चार्ज करे. It has the right to levy, to charge tax. Okay. Now, Article 265 of Indian Constitution states that the right to levy or charge tax hasn't given to any authority except the law, authority of law. यानी कि किसी के पास नहीं है, सिर्फ authority of law के पास है. Then, as per 246 of Constitution of India, only Parliament has the exclusive power to make laws in respect of union list. 246 क्या कहता है कि जो यूनियन लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में टोटली एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट का है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ यू टॉक अबाउट स्टेट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसमें एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट का, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों बनाते हैं, यानी कि स्टेट भी और सेंट्रल भी. आगे क्या है, हाउएवर प्रोफेशनल टैक्स दो इज अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन इनकम. टैक्सेस जो हमारी है यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करती है टैक्सेस ऑन इनकम, जो कि एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट का. लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स है वो एक सिर्फ ऐसा टैक्स है जो स्टेट लिवाई करती है, सभी स्टेट लिवाई नहीं करती. इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट. कोई स्टेट लिवाई करती है, कई स्टेट नहीं करती. State government is also empowered to make laws with respect to professional tax, though being a tax on income under Article 276 of Constitution of India, which deals with the taxes on professions, trades, callings or employment. ठीक है, in short, जो प्रोफेशनल टैक्स है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसकी. Then professional tax being levied by the state government is different in different states. Every state has its own laws and regulations to govern professional tax of that particular state. हर एक स्टेट का अपना अपना है, कई अपने अपने स्लैब रेट्स हैं उनके पास. हर स्टेट, कई स्टेट्स तो जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वही लिवाई करते हैं प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स पर भी. ओके. अब एक्चुअली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, द एम्प्लॉयर यूज टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस टैक्स, द एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, एंड पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, पे द रेस्ट ऑफ द सैलरी टू द एम्प्लॉय. That means before paying the salary to employee, the employer used to deduct the amount of professional or employment tax and pay to the commercial tax department, which further reaches the fund of municipality corporation. Okay, in cases of employees, an employer is a person responsible to deduct and pay professional tax to the state government, subject to the monetary threshold if any. वो अलग अलग state का अपना अपना होता है हर एक चीज का. Then amount of professional tax collected does not exceed 2500 per annum. That means state ₹2500 से ऊपर, यानी कि मैक्स टू मैक्स ही कैन लिवाई अप टू ₹2500 per annum as a professional tax or employment tax, not more than that. Then a deduction from salary can be claimed by the taxpayer on account of professional tax or employment tax paid. The deduction of professional tax or employment tax will be allowed in the year in which the tax is actually paid by the employee. यानी कि एम्प्लॉय के खाते में से जब वो डिडक्ट हुई है, जिस साल में डिडक्ट हुई है उसी साल में हम डिडक्शन क्लेम करेंगे. ओके. नाउ प्रोफेशनल टैक्स ड्यू बट नॉट पेड. आपका प्रोफेशनल टैक्स ड्यू है लेकिन पे नहीं किया. दैट मीन्स यू ओ टू पे द प्रोफेशनल टैक्स that has become already due. That will not be allowed as deduction. In the year in which you will pay that professional tax or employment tax, in that year only you can claim such deduction. Hope it is much clear what professional tax, who claims the professional tax, who pays the professional tax or employment tax, okay, or who has the power. Now let us solve a
illustration. Okay, we have an illustration that A is employed by ABC Private Limited Company. He is getting the following. क्या क्या मिल रहा है? बेसिक पे मिल रही है 60,000, DNS अलाउंस है 20,000, कमीशन है 1,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2,000, प्रोफेशनल टैक्स है 2,500. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस. क्या कहते हैं, पहले तो हम इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ग्रॉस सैलरी. पहले आएगी हमारी बेसिक पे, इट्स 60,000. ओके, देन DA, it's 20,000. Then commission, which is 1,000. Then इतनी सी हमारी है एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स. पहले हम एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करते हैं, ठीक है ना. हम एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करते हैं पहले सैलरीज में, उसके बाद हम करते हैं. लेकिन मैम ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है ए है वो प्राइवेट एम्प्लॉय है. ही इज एम्प्लॉयड एट ABC प्राइवेट लिमिटेड. दैट इज वाई the amount cannot be added. Sorry, basic pay, commission 1,000, right? Then entertainment allowance कितना, हम पहले ऐड करेंगे ना entertainment allowance, don't forget that we have to add it. okay, उसके बाद डिडक्ट करेंगे. अब हमारा कितना आया, टोटल 60,000 प्लस 20,000, 80,000, 80,000 एंड 3,000, 83,000. ओके, टोटल आया हमारा 83,000. अब हम करेंगे लेस डिडक्शंस. ओके, फर्स्ट we talk about, first is our standard deduction under section 16 clause 1. sorry, clause I. we have to mention like this only. ये नहीं कि आप बीच में 1 लिख दो. it is 50,000, right? not more than that. अगर 50,000 से कम होती तो हम उतनी डिडक्ट करते, सारी की सारी फिर नील हो जानी थी. देन वी हैव एंटरटेनमेंट अलाउंस. सेकेंड हमारा आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस. अरे 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 मैम, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अवेल होता है डिडक्शन, नॉट टू प्राइवेट एम्प्लॉयज़. इसीलिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस हम नहीं डिडक्ट करेंगे. दैट इज टोटली चार्जेबल टू टैक्स. देन इज प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स पेड है. आई हैव नॉट मेंशन हियर पेड, यहाँ पेड लिखना चाहिए. प्रोफेशनल टैक्स पेड. ओके, 60 अंडर सेक्शन 16 clause 3. कितना, 2500, 2,500. ऐसा है कि जब हम कोई अमाउंट डिडक्ट करते हैं उसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ठीक है, तो 83,000 minus 50,000, it's 33,000. then 33,000
minus 2500 is 30,500. ओके, हमारे पास बैलेंस आया, हमारे पास हमारे पास 30,500. See if any correction is to be done. कितना? 30,500, राइट? ये आ गया हमारा नेट सैलरीज. ओके, अब एक चेंज करते हैं यहाँ पे. क्या चेंज करते हैं पहले देखें. यहाँ पे लिखो A is a government employee, राइट? क्या करेंगे? चेंज किया हमने, he is a government employee, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके, जस्ट अ मिनट. स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हमारा. ठीक है, अब क्या होगा? ये सब तो ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा. लेट मी टेल यू. यहाँ पे मैं इसे बैक करना होगा. ओके, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख लेंगे डिडक्शंस. हमने क्या कहा? A is a government employee. ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस आएंगी हमारी. क्या होगा? लेस डिडक्शंस. पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1 आया हमारा 50,000. ब्रैकेट में 50,000. देन नेक्स्ट सेकंड हमारा आया एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब इसके लिए हमें कंसीडर करने हैं 3 पॉइंट्स. ठीक है, कंसीडर करने हैं 3 पॉइंट्स. देखो, पहला स्टैट्यूटरी लिमिट 5,000. ठीक है, दूसरा 20%, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कितनी है हमारी? 60,000. 60,000 का 1/5 12,000. थर्ड हमारा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000. ठीक है, अब इनमें से मिनिमम कौन सा है बताओ? 2,000. तो इसमें से डिडक्ट होगा 2,000. मिनिमम लीस्ट ऑफ दिस विच एवर इज लोअर, दैट इज 2,000. देन थर्ड लास्ट deduction, professional tax paid. Professional tax under section 16 clause 3 कितना? 2,500. 2,500.
ठीक है, अब हमारा टोटल कितना आया, अब हमारी नेट सैलरीज देखिए कितनी आई, 83,000 माइनस 50,000, 33,000, 33,000 माइनस 2,000 माइनस 2,500 कितना आया, 28,500. Let me check. 83,000 minus 50,000, 33,000. Okay, then 33,000 minus 2,000. Wait a minute. 33,000 na, 31,000. 31,000 minus 2,500, 28,500. Okay, done. अब हो गया इलस्ट्रेशन, देख लिया किस तरह से हमने डिडक्ट की हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं. पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000. दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, 3 पॉइंट्स देखने हैं, 4 पॉइंट्स देखने हैं. पहला तो ये देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन होगी, लेकिन सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करेंगे हेड सैलरीज में. ठीक है, उसके बाद हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में डिडक्ट करेंगे. डिडक्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स देखने हैं. पहला स्टैट्यूटरी लिमिट 5,000, दूसरा 20% यानी कि 1/5 ऑफ द बेसिक पे, वो देखना है. देन थर्ड इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन. तीनों में से विच एवर इज लोअर दैट विल बी डिडक्टेबल. देन थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स, मैक्सिमम लिमिट इज 2,500. ओके, और जितना पे किया है जिस साल, और जितना पे किया है उस साल में उतना ही डिडक्ट होगा प्रोफेशनल टैक्स. ये नहीं कि आपका ड्यू था 2,500, यू विल डिडक्ट 2,500 वेदर यू हैव पेड और नॉट. ठीक है, इन द ईयर यू हैव पेड द प्रोफेशनल टैक्स, ओनली इन दैट ईयर इट विल बी अलाउड टू डिडक्ट. ओके, अब आता है नेक्स्ट. यस, नाउ perquisites एंड अलाउंसेस. हमने कहा perquisites नॉन कैश बेनिफिट्स हमने पहली वीडियो में सैलरीज की फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया. ठीक है, और अलाउंसेस होते हैं कैश बेनिफिट्स. यही चीज़ हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. perquisites आर नॉन कैश बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, एग्जाम्पल्स के साथ, और इट इज़ बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पंजाब से हो, आपकी जॉब लगी है दिल्ली में. अब आप एम्प्लॉयर से कह रहे हो, आप अपने बॉस से कह रहे हो, सर मेरे को कोई घर मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, डायरेक्टली जॉब लगी है, मुझे कोई घर नहीं मिला रेंट के लिए, तो मुझे थोड़ी हेल्प कर दो. अब एम्प्लॉयर आपका बॉस कहता ठीक है, ये मेरा फ्लैट है, यहाँ रह लेना, मुझे कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ रह सकता है फ्री में. ठीक है, बट अपने काम पे टाइम से पहुँच जाना और अपना काम सही से करना. ये क्या हुआ, परक्विजिट्स. रेंट फ्री अकोमोडेशन, उससे कोई रेंट ही नहीं लिया, उससे फ्री में अकोमोडेशन दिलवा दी, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया. इसने क्या किया, परक्विजिट्स, उसको नॉन कैश बेनिफिट दिया. या तो कहा चलो दूसरा एग्जाम्पल, एम्प्लॉय कहता सर मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरे को कोई कुक भी नहीं मिल रहा. कहते चलो ठीक है, तो कुक रख ले, ये पैसे ले ले, तो कुक को दे देना, तो हर महीना मेरे से पैसे ले ले कुक के. ठीक है, ये क्या हुआ, अलाउंस, इट्स अ कैश बेनिफिट. अब इन्हीं को आप दोनों केसेस में ले सकते हो. कैसे, तो एम्प्लॉय आप गए अपने बॉस के पास, बॉस को कहा सर मेरे पास घर रहने के लिए नहीं है, रेंट जो है बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे रेंट है, तो या तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दो या मेरे को हेल्प कर दो. उसने कहा ठीक है, सैलरी नहीं बढ़ाते, मैं तेरा रेंट तो ये ले ले पैसे, तू हर महीने मेरे से 20,000 पे ले ले, अपना रेंट पे कर ले. ठीक है, मैंने तेरे को ये दे दिए 20,000 रुपये, अपना रेंट पे कर दे, तू जौन सा मर्जी रेंटल हाउस ले ले. ठीक है, अब ये क्या हुआ, 20,000, इट्स अ कैश बेनिफिट.
पहले के केस में हमने डिस्कस किया, उसने घर दे दिया फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसने अपना फ्लैट दे दिया उसको रहने के लिए कि तू फ्री में रह ले, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, उसने पैसे दे दिए, वो था नॉन कैश बेनिफिट्स और ये था कैश बेनिफिट्स। वो था परक्विजिट, ये है अलाउंस। अगर वही हमने कुक की बात की, उसने बोला कि सर मेरे को खाना बनाना नहीं आता और मेरे पास अगर कुक रखता हूँ बहुत वो हाई पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है कुक, तो कहता है चलो ठीक है, एम्प्लॉयर ने बोला ये तू पैसे ले ले, ये मेरी तरफ, ये पैसे ले ले और दे दे अपने कुक को, जौन सा मर्जी कुक रख ले। ये क्या हुआ, कैश बेनिफिट्स। वही उसने बोला दूसरा कि ये मेरा कुक है, मेरे घर में 2 कुक हैं तो एक तू ले ले, ठीक है। अब ये क्या हुआ, परक्विजिट, उसने कुक दिलवा दिया उसे, दूसरे में उसने उसको पैसे दे दिए कुक के। दोनों में डिफरेंस ये हुआ क्या, पहला नॉन कैश बेनिफिट, दूसरा कैश बेनिफिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सर मेरे ना बच्चों की फ़ीस पे करनी है, मेरे पास फ़ी पे करने के लिए पैसे नहीं है, घर के खर्चों में सारी सैलरी चली जाती है, बच्चों की फ़ीस रह जाती है। चलो ठीक है, हम बच्चों की फ़ीस पे कर देते हैं, तू पढ़ा उनको, ठीक है, उनको तू स्कूल में एडमिशन दिलवा, फ़ीस मैं पे कर दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, परक्विजिट। अब अलाउंस में देखा जाए, सर मेरे बच्चों के लिए बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, ये ले 10,000 रुपये, जा पे कर दे फीस। ये क्या हुआ, कैश बेनिफिट। This is the difference between perquisites and allowances. In the next video, we will discuss in detail कि perquisite कौन-कौन से होते हैं, taxable कौन से होते हैं, exempted कौन से होते हैं, partially taxable और partially exempted कौन से होते हैं. Then we will talk about allowances also in the next video. Thank you so much. This is for today. The video, press the like button, subscribe my channel and share it with your friends and classmates. Thank you so much.